Hello students, today we are going to start a new chapter, transportation in animals and plants. You all must be familiar with the term transportation. In general sense, transportation means the movement of goods and persons from one place to other by certain means. But in biology, transportation means the movement of substances from one place to other in animals and plants. Okay. Transportation is a natural and physiological process that is essential for life. Okay. Transportation is essential for life. And you have studied in previous chapter that all living cells have to be provided with nutrients. Oxygen, and other essential substances, and also the waste or harmful substances produced such as ammonia, urea, uric acid, carbon dioxide, water, and ions like sodium, potassium, then chlorine, sulfate and phosphate. These all are harmful substances, and these are produced either by metabolic activities or by other means like excess ingestion, and these harmful substances have to be removed continuously. Okay, for healthy functioning of tissues, these harmful substances have to be removed continuously. Okay, and it is therefore essential to have an efficient mechanism. Okay, एक efficient mechanism होना चाहिए ताकि इन harmful substances को बॉडी से रिमूव किया जा सके. ओके, in unicellular organisms like amoeba and paramecium, materials or substances move by a process called diffusion. Okay, diffusion के जरिए इनमें ट्रांसपोर्ट होता है substances का. नेक्स्ट है in organism like sponges and coelenterate. एग्जाम्पल है हाइड्रा. इनमें क्या होता है, they circulate water from their surrounding. These all are aquatic organisms. Okay, and these organisms circulate water from their surroundings through their body cavity. Okay, स्पॉन्ज इस तरह का दिखता है. वेट अ मिनट.
एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है और ये इस तरह का दिखता है स्पॉन्ज। के बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ओके, और इन पोर्स को ऑस्टिया कहते हैं, ऑस्टिया। और ये जो ओपनिंग ऊपर में है उसे ऑस्क्यूलम कहते हैं, ओके, ऑस्क्यूलम। And sponges and coelenterate, they circulate water from their surrounding through their body cavities, okay, to facilitate the exchange of these substances. ये स्पॉन्ज में क्या होता है, ऑस्टिया के थ्रू वाटर इनके बॉडी कैविटीज़ में जाता है, कि ये बॉडी कैविटी है, इन सारे जितने भी हैं इनमें बॉडी कैविटीज़ में ऑस्टिया के थ्रू वाटर अंदर जाएगा और फिर सेल्स के पास पहुंचेगा। जो यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनमें वो सेल्स के पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद फिर जो हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं वो फिर ऑस्क्यूलम के थ्रू वाटर में डिज़ोल्व होकर बाहर आ जाएंगे, ओके। नेक्स्ट है ह्यूमन बीइंग्स। ह्यूमन बीइंग्स एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म यूज स्पेशल फ्लूइड। स्पेशल फ्लूइड का यूज करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। That this special fluid is blood, okay. Human being and more complex organisms use special fluid within their bodies to transport such substances, and that fluid is blood, okay. And in case of plants, conducting tissues help to transport water, minerals and food. प्लांट्स में क्या होते हैं, कंडक्टिंग टिश्यूज होते हैं फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। कंडक्टिंग टिश्यूज, इन सब के बारे में हम डिटेल में चैप्टर में पढ़ेंगे। कंडक्टिंग टिश्यूज कौन कौन से टिश्यूज होते हैं, फिर स्पेशल फ्लूइड जो है ह्यूमन बीइंग और अदर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म में ट्रांसपोर्ट का काम करता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ब्लड के बारे में, ओके। सबसे पहले ब्लड के बारे में पढ़ते हैं। क्या है ब्लड? Blood is a fluid connective tissue, or we can say it is a special connective tissue consisting of formed elements and blood plasma होते हैं और formed elements होते हैं blood में। Plasma is straw colored fluid and constitute nearly 55% of the blood, whereas formed element constitute 45% of the blood, okay. 90 to 92% of plasma is water, ठीक है। इसमें वाटर 90 to 92% होते हैं and protein constitute 6 to 8% of plasma। प्रोटीन में क्या क्या होते हैं? फाइब्रिनोजिन होते हैं, एल्ब्यूमिन्स, मैं लिख रही हूँ पहले, एल्ब्यूमिन्स, देन फाइब्रिनोजिन,
and globulins. Okay, this protein constitutes 6 to 8% of plasma. Albumin, its function is it help in osmotic balance. Albumin जो होते हैं osmotic balance में help करते हैं. I'm writing again. Albumins helps in osmotic balance. Then globulin. ग्लोबुलिन का काम क्या है? It is primarily involved in defense mechanism of the body. Okay, defense. Okay, आप हर क्लास में इसके बारे में पढ़ेंगे डिटेल में. ओके, इम्यून सिस्टम जो होता है उसमें ग्लोबुलिन कितने तरह के होते हैं. इम्यूनोग्लोबुलिन जो कि डिफेंस मैकेनिज्म, बॉडी के डिफेंस मैकेनिज्म में काम करते हैं. ओके, नेक्स्ट प्रोटीन है फाइब्रिनोजेन. फाइब्रिनोजेंस, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटीन है. ऐसे तो सारे ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फाइब्रिनोजेंस का फंक्शन क्या है? इट इज नीडेड फॉर क्लॉटिंग ऑफ ब्लड. ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है ये प्रोटीन. क्लॉटिंग ऑफ, और यू कैन से कोआगुलेशन. ओके, कोआगुलेशन ऑफ ब्लड. याद रखिएगा, फाइब्रिनोजेन ब्लड के क्लॉटिंग में हेल्प करता है. नेक्स्ट है, इन प्रोटीन्स के अलावा और भी प्लाज्मा में क्या होते हैं? प्लाज्मा में फूड जो हमने खाया होता है, कार्बोहाइड्रेट, वो डाइजेस्ट होकर सिंपल और सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना. जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है कार्बोहाइड्रेट. ये सभी ब्लड प्लाज्मा में होते हैं. ग्लूकोज, अमीनो एसिड जो प्रोटीन के डाइजेशन से फॉर्म होता है, अमीनो एसिड्स. देन लिपिड्स, these all are also present in blood plasma as they are always in transit in body. Okay, and other than that, ions like minerals like sodium and calcium, magnesium and bicarbonate ion. इस फॉर्म में ही कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड में. ओके, ये ब्लड प्लाज्मा में पाए जाते हैं बाइकार्बोनेट आयन. देन क्लोरीन आयन, these all are also found in blood plasma. Okay, and blood clotting factors भी होते हैं जो ब्लड के क्लॉट करने में हेल्प करते हैं. वो इनएक्टिव फॉर्म में ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं. अगर प्लाज्मा में से इन क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव कर दिया जाए तो हम वेट अ मिनट, तो हमें सीरम मिलेगा. ओके, ब्लड सीरम. इफ वी रिमूव क्लॉटिंग फैक्टर्स फ्रॉम प्लाज्मा वी गेट ब्लड सीरम. नाउ फॉर्म्ड एलिमेंट्स क्या है? ब्लड का जो दूसरा पार्ट है. ओके, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आते हैं देखते हैं.
I'm writing the formed elements. इनमें आते हैं रेड ब्लड सेल्स, RBC, then white blood cells and platelets. ओके, RBC को इरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं और वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं. ओके, RBC को इरिथ्रोसाइट्स कहते हैं. यहाँ लिखना थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है. इरिथ्रोसाइट्स और वाइट ब्लड सेल्स को ल्यूकोसाइट्स कहते हैं. ओके, RBC के ऊपर ही हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है. हेमोग्लोबिन जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है. जब हम ऑक्सीजन लंग्स से जब ब्लड में डिफ्यूज़ हो जाता है तो हेमोग्लोबिन से कंबाइंड होकर ही वो डिफरेंट सेल्स तक पहुंचता है. ओके, हेमोग्लोबिन RBC के ऊपर प्रेजेंट होता है. ओके, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर में क्या है. लेट्स सी. You have learnt earlier that all organisms need food, water and oxygen for survival. है ना, हमारे सर्वाइवल के लिए फूड चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये तो हम अच्छे से जानते हैं. ओके, they need to transport all these to various parts of their body. Further, animals need to transport waste to parts from where they can be removed. तो ये जो इम्पॉर्टेंट सब्सटेंसेस हैं इनको बॉडी सेल्स तक पहुंचाना, बॉडी में पहुंचाना और साथ में जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं उन्हें बॉडी से बाहर रिमूव करना बहुत ही ज़रूरी है. नेक्स्ट है, हैव यू वंडर्ड हाउ ऑल दिस इज अचीव्ड? लुक एट फिगर 7.1. डू यू सी द हार्ट and the blood vessels? They function to transport substances and together form the circulatory system. हमारा हार्ट और ब्लड वेसल्स साथ मिलकर क्या बनाता है? सर्कुलेटरी सिस्टम बनाता है. ओके, सर्कुलेटरी सिस्टम. In this chapter you shall learn about transport of substances in animals and plants. तो एनिमल्स में मैंने भी बताया ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है डिफरेंट सब्सटेंसेस का, बट इन केस ऑफ प्लांट्स ट्रांसपोर्टेशन ऑकर थ्रू कंडक्टिंग टिश्यूज. ओके, ये जो फिगर है 7.1 इसमें ये हार्ट है. ओके, दिस वन इज हार्ट एंड ये जो ब्लू एंड रेड वेसल्स जो नज़र आ रहे हैं, लाइंस जो नज़र आ रहे हैं, वो सब क्या है? वो सब ब्लड वेसल्स है. ओके, जो रेड है वो है आर्टरी और ये पूरे बॉडी में ही फैला हुआ है. आप देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए हेड से लेकर टो तक. ओके, हैंड्स में. तो ये ब्लड वेसल्स का जाल पूरे बॉडी में फैला होता है. ओके, वेट अ मिनट, क्या हो जाता है इसे? ये हमारा हार्ट है और हार्ट में से ये ब्लड वेसल्स निकल रहे हैं. जो रेड है ब्लड वेसल्स उसे आर्टरी कहते हैं. ओके, आर्टरी इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट and it carry oxygenated blood. आर्टरी जो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, मीन्स ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है. और जो ब्लू दिख रहा है वो वेन्स है. ओके, और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है.
जिसमें ऑक्सीजन नहीं होता, ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड। ओके, और हार्ट में भी देखिए आप ब्लू एंड रेड पार्ट दिख रहा है, जो रेड पोर्शन है उसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, और यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो ब्लू पार्ट है उसमें। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हमारे पल्मोनरी वेन्स के थ्रू हार्ट में आता है, और यहाँ से फिर वो ऑरिकल वेंट्रिकल से हार्ट का जो लोअर पार्ट है इस साइड में, जो रेड वाले पार्ट में, उसे वेंट्रिकल कहते हैं। ओके, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, और यहाँ से ये पूरे बॉडी में सर्कुलेट होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, और जो ब्लू पोर्शन है वहाँ जो वेसल्स हैं उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी से हार्ट के पास जाता है, और हार्ट के पास से वो लंग्स के पास जो कैपिलरीज होते हैं थ्रू पल्मोनरी आर्टरी वहाँ तक पहुँचते हैं। फिर से वहाँ गैसेस एक्सचेंज होता है, और फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है फिर से हार्ट में पहुँचता है। तो इस तरह से साइकिल चलता रहता है इसमें हार्ट में। ओके, और ब्लड का सर्कुलेशन होता रहता है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड क्या है? What happens when you get a cut on your body? Blood flows out. But what is blood? What is the fluid which flows in blood vessels? It transports substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body. तो ब्लड क्या है? हमने देखा ही एक फ्लूइड है जो कि ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। ब्लड इज़ द फ्लूइड विच फ्लोज इन द ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड वेसल्स हैं इनमें ब्लड फ्लो कर रहा है, और ये जो देख रहे हो ये जो थिन ट्यूब्स नज़र आ रहे हैं, ब्लड वेसल्स जो नज़र आ रहे हैं, इन्हें कैपिलरीज कहते हैं। ओके, तो ब्लड का फंक्शन क्या है? इट ट्रांसपोर्ट्स, देखेंगे हम, इट ट्रांसपोर्ट्स substances like digested food from the small intestine to the other parts of the body। तो एक फंक्शन ये हो गया। नेक्स्ट है इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। सेकेंड फंक्शन। एंड थर्ड वन इज इट ट्रांसपोर्ट्स वेस्ट फॉर रिमूवल फ्रॉम द बॉडी। तो ये सब फंक्शंस हैं ब्लड के। ओके, पहले तो ये डाइजेस्टेड फूड को सारे सेल्स तक पहुंचाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से पूरे बॉडी में पहुंचाता है। फिर ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को लंग्स से सेल्स तक पहुंचाता है, बॉडी सेल्स तक। ओके, एंड वेस्ट के रिमूवल में भी हेल्प करता है ब्लड। हाउ डज द ब्लड कैरी वेरियस सब्सटेंसेस? Blood is composed of a fluid called plasma, in which different types of cells are suspended। तो क्वेश्चन है यहाँ पे ब्लड कैसे ये ट्रांसपोर्टेशन में कैसे हेल्प करता है, ये सब्सटेंसेस को कैसे कैरी करता है। तो हमने अभी पढ़ा कि ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है, फ्लूइड होता है जो से प्लाज्मा कहते हैं, और सस्पेंडेड सेल्स होते हैं, सस्पेंडेड सेल्स जो हमने फॉर्म्ड एलिमेंट्स पढ़े। ओके, आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, ये सब सस्पेंडेड सेल्स हैं, और प्लाज्मा जो है फ्लूइड उसमें ये सेल्स प्रेजेंट रहते हैं। नेक्स्ट है व्हाई इज द कलर ऑफ ब्लड रेड? तो मैंने पढ़ाया आपको हेमोग्लोबिन के बारे में। हेमोग्लोबिन जो होता है आरबीसी में प्रेजेंट होता है, और ये रेड पिगमेंट है जो कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में हेल्प करता है। ओके, हेमोग्लोबिन, इसी के कारण ब्लड का कलर रेड होता है। गॉट इट? आज हम यहाँ तक ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे देखेंगे आगे क्या पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।